Fair value gap, FVG, how smart money leaves footprints in the market, such as forex, index, crypto, stock traders. Have you ever seen price moves explosively in one direction, then later return to a specific zone and react perfectly? That zone is not magic. That zone is not coincidence. That zone is called a fair value gap. Today, I'll show you what fair value gap really is, why smart money creates it, and how you can trade it with precision. What is fair value gap? A fair value gap, FVG, is an imbalance in price delivery. It occurs when the market moves so fast that buyers and sellers do not transact fairly at certain price levels. In simple terms, price jumps, leaving behind unfinished business. A fair value gap is a three-candle structure at the bottom or top where the middle candle's body creates a gap between the wicks of the first and third candle. This is the fair value gap. Why does fair value gap form? Fair value gaps are not created by retail traders. They are created by smart money. When large orders enter the market, price cannot fill every level smoothly. So price expands aggressively, creating imbalance. And here's the key principle you must remember, that price seeks efficiency. It often returns to rebalance these inefficiencies. Types of fair value gap: bullish fair value gap and bearish fair value gap. A bullish fair value gap forms during a strong upward move. The gap acts as support when price retraces. A bullish fair value gap is a price imbalance created by aggressive institutional buying, where the market moves so quickly upward that efficient two-way trading does not occur. This inefficiency leaves a gap in liquidity that price often revisits before continuing higher. It is strong bullish displacement. Gap between candle 1 high and candle 3 low. Best used in uptrend or after inducement. It appears in a 3-candle sequence. Candle 1, bearish or small-bodied candle. Candle 2, strong bullish displacement candle, impulsive move. Candle 3, bullish continuation. The gap is defined between the high of candle 1 and the low of candle 3 is fair value gap. If the low of candle 3 is above the high of candle 1, the space between them is the bullish fair value gap. What it represents: institutional urgency. Large players entered the market aggressively. Unfilled orders, not all buy orders, were executed during the impulse. Market inefficiency. Price skipped levels where trading should have occurred. Because institutions seek price efficiency, the market frequently returns to this zone to rebalance orders. Why it matters: a bullish FVG acts as a high probability support zone. Price retraces into the FVG. Mitigates the imbalance. Resume the bullish move if market structure remains intact. This is why FVGs are central to ICT and smart money concepts. They reveal where institutions are likely to defend price. How professionals trade it. A bullish FVG is most effective when aligned with overall bullish market structure. Discount zone below equilibrium. Confluence with order block or liquidity sweep. Entry logic: wait for price to retrace into the FVG. Prefer entries near the 50% level of the gap. Confirm with lower time frame reaction, shift in structure. Invalidation: a clean break below the FVG signals failure and invalidates the setup.
Bearish fair value gap. A bearish FVG forms during aggressive selling. The gap acts as resistance on retracement. A bearish fair value gap, FVG, is a price imbalance created by aggressive institutional selling, where price drops so rapidly that normal two-way trading fails to occur. This inefficiency leaves behind unfilled sell orders, forming a zone that price frequently revisits before continuing lower. Strong bearish displacement is the gap between candle 1 low and candle 3 high. Best used in downtrend. It appears through a 3-candle sequence. Candle 1, bullish or small-bodied candle. Candle 2, strong bearish displacement candle. Candle 3, bearish continuation. The bearish fair value gap is defined between the low of candle 1 and the high of candle 3. If the high of candle 3 is below the low of candle 1, the space between them is the bearish FVG. What it represents: institutional urgency, large participants executed heavy sell orders. Unfilled sell-side liquidity, orders could not be fully matched. Market inefficiency, price skipped tradable levels during the sell impulse. Institutions seek price efficiency, so markets often retrace into this zone to rebalance before resuming the downtrend. Why it matters? A bearish FVG functions as a high probability resistance zone. Price retraces upward into the FVG. Mitigates the imbalance. Continues lower if bearish structure remains intact. This behavior is foundational in ICT and smart money concepts, where FVGs highlight areas of institutional control. How professionals trade it. A bearish FVG gains reliability when aligned with bearish market structure. Premium zone, above equilibrium. Confluence with order block, liquidity grab, or previous high. Execution logic, allow price to retrace into the FVG. Favor entries around the 50% level of the gap. Confirm via lower time frame structure shift or rejection. Invalidation, a decisive close above the FVG invalidates the bearish narrative. A bearish fair value gap is not random, it is evidence of smart money distribution. Respect of the zone signals continuation, failure signals structural change. How to trade fair value gap. Let's talk execution, because knowledge without execution is useless. Step-by-step trading model. Identify market structure, higher highs and higher lows, bullish, and lower highs and lower lows, bearish. Wait for displacement, strong impulsive move creating FVG. Mark the FVG zone, use the 50% level of the gap for precision. Enter on retracement into FVG and confirm with lower time frame structure. Stop loss below swing low, bullish, and above swing high, bearish. Target liquidity highs or lows and previous structure points. This is how professionals trade, not indicators, not guessing. Common mistakes. Let me save you money by exposing common mistakes. Don't trade in every fair value gap blindly. Don't ignore higher time frame buys. Don't enter without confirmation. Don't forget liquidity context. Fair value gap works best when aligned with trend, liquidity, and time. Fair value gap is not a strategy by itself. It is a tool, a very powerful one, when used with market structure and liquidity. If you want to trade like smart money, you must learn to see what smart money leaves behind.
If this video added value, hit the like button. Subscribe for professional smart money concepts content. And comment below, do you trade fair value gaps or want a live chart breakdown? फेयर वैल्यू गैप FVG स्मार्ट मनी फॉरेक्स इंडेक्स क्रिप्टो स्टॉक ट्रेडर्स जैसे मार्केट में कैसे निशान छोड़ता है? क्या आपने कभी देखा है कि कीमत एक दिशा में तेजी से बढ़ती है, फिर बाद में एक खास जोन में लौटती है और पूरी तरह से रिएक्ट करती है? वह जोन कोई जादू नहीं है, वह जोन कोई इत्तेफाक नहीं है। उस जोन को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप असल में क्या है, स्मार्ट मनी इसे क्यों बनाता है और आप इसे सटीकता से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप क्या है? एक फेयर वैल्यू गैप FVG कीमत डिलीवरी में एक असंतुलन है। यह तब होता है जब मार्केट इतनी तेजी से चलता है कि खरीदार और विक्रेता कुछ खास प्राइस लेवल पर सही तरीके से लेन देन नहीं करते हैं। आसान शब्दों में, कीमत उछलती है, अधूरा काम पीछे छोड़ देती है। एक फेयर वैल्यू गैप नीचे या ऊपर एक 3 कैंडल स्ट्रक्चर है, जहां बीच वाली कैंडल की बॉडी पहली और तीसरी कैंडल की विक्स के बीच एक गैप बनाती है। यही फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है? फेयर वैल्यू गैप रिटेल ट्रेडर्स द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, वे स्मार्ट मनी द्वारा बनाए जाते हैं। जब बड़े ऑर्डर मार्केट में आते हैं तो कीमत हर लेवल को आसानी से नहीं भर पाती है, इसलिए कीमत तेजी से बढ़ती है, जिससे असंतुलन पैदा होता है। और यहां वह मुख्य सिद्धांत है जिसे आपको याद रखना चाहिए कि कीमत दक्षता चाहती है। यह अक्सर इन अक्षमताओं को फिर से संतुलित करने के लिए वापस आती है। फेयर वैल्यू गैप के प्रकार: बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप एक मजबूत ऊपर की ओर चाल के दौरान बनता है। जब कीमत रिट्रेस करती है तो गैप सपोर्ट के रूप में काम करता है। एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप आक्रामक संस्थागत खरीदारी द्वारा बनाया गया एक प्राइस असंतुलन है, जहां मार्केट इतनी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है कि कुशल दो तरफा ट्रेडिंग नहीं होती है। यह अक्षमता लिक्विडिटी में एक गैप छोड़ देती है, जिसे कीमत अक्सर ऊपर जारी रखने से पहले फिर से देखती है। यह मजबूत बुलिश डिस्प्लेसमेंट है। कैंडल एक हाई और कैंडल 3 लो के बीच गए। अप ट्रेंड में या इंड्यूसमेंट के बाद सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। यह 3 कैंडल सीक्वेंस में दिखाई देता है। कैंडल 1 बेरिश या छोटी बॉडी वाली कैंडल। कैंडल 2 मजबूत बुलिश डिस्प्लेसमेंट कैंडल, इंपल्सिव मूव। कैंडल 3 बुलिश कंटिन्यूएशन। गैप को कैंडल 1 के हाई और कैंडल 3 के लो के बीच परिभाषित किया गया है। यही फेयर वैल्यू गैप है। अगर कैंडल 3 का लो कैंडल 1 के हाई से ऊपर है तो उनके बीच की जगह बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। यह क्या दिखाता है? इंस्टीट्यूशनल अर्जेंसी। बड़े प्लेयर्स ने आक्रामक तरीके से मार्केट में एंट्री की। अधूरे ऑर्डर इंपल्स के दौरान सभी बाय ऑर्डर पूरे नहीं हुए। मार्केट में कमी, कीमत ने उन लेवल को छोड़ दिया जहां ट्रेडिंग होनी चाहिए थी। क्योंकि इंस्टीट्यूशन कीमत में एफिशिएंसी चाहते हैं, इसलिए मार्केट अक्सर ऑर्डर को रीबैलेंस करने के लिए इस जोन में वापस आता है। यह क्यों मायने रखता है? एक बुलिश FVG एक हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन के रूप में काम करता है। कीमत FVG में रिट्रेस करती है।
असंतुलन को कम करता है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बरकरार रहता है तो बुलिश मूव फिर से शुरू होता है। यही कारण है कि एफवीजी, आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के लिए जरूरी हैं। वे दिखाते हैं कि इंस्टीट्यूशन कहां कीमत का बचाव कर सकते हैं। प्रोफेशन इसे कैसे ट्रेड करते हैं? एक बुलिश एफवीजी सबसे ज्यादा असरदार तब होता है जब यह इसके साथ अलाइन हो। कुल मिलाकर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर डिस्काउंट जोन इक्विलिब्रियम से नीचे, ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी स्वीप के साथ तालमेल। एंट्री लॉजिक, कीमत के एफवीजी में रिट्रेस करने का इंतजार करें। गैप के 50% लेवल के पास एंट्री को प्राथमिकता दें। लोअर टाइम फ्रेम रिएक्शन स्ट्रक्चर में बदलाव के साथ कंफर्म करें। अमान्य होना एफवीजी के नीचे एक साफ ब्रेक फेलियर का संकेत देता है और सेटअप को अमान्य कर देता है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप, एक बेरिश एफवीजी आक्रामक सेलिंग के दौरान बनता है। गैप रिट्रेसमेंट पर रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप एफवीजी आक्रामक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग से बना एक प्राइस असंतुलन है जहां कीमत इतनी तेजी से गिरती है कि सामान्य दो तरफा ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। यह कमी अधूरे सेल ऑर्डर छोड़ देती है, जिससे एक ऐसा जोन बनता है जहां कीमत नीचे जाने से पहले अक्सर वापस आती है। मजबूत बेरिश डिस्प्लेसमेंट कैंडल 1 के लो और कैंडल 3 के हाई के बीच का गैप है। डाउन ट्रेंड में सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है। यह 3 कैंडल सीक्वेंस के जरिए दिखता है। कैंडल 1 बुलिश या छोटी बॉडी वाली कैंडल। कैंडल 2 मजबूत बेरिश डिस्प्लेसमेंट कैंडल। कैंडल 3 बेरिश कंटिन्यूएशन। बेरिश फेयर वैल्यू गैप को कैंडल 1 के लो और कैंडल 3 के हाई के बीच डिफाइन किया गया है। अगर कैंडल 3 का हाई कैंडल 1 के लो से नीचे है तो उनके बीच की जगह बेरिश एफवीजी है। यह क्या दिखाता है? इंस्टीट्यूशनल अर्जेंसी, बड़े पार्टिसिपेंट्स ने भारी सेल ऑर्डर दिए। अधूरे सेल साइड लिक्विडिटी ऑर्डर पूरी तरह से मैच नहीं हो पाए। मार्केट में कमी बिकवाली के दौरान कीमत ने ट्रेडेबल लेवल को छोड़ दिया। संस्थान कीमत में कुशलता चाहते हैं, इसलिए बाजार अक्सर डाउन ट्रेंड फिर से शुरू करने से पहले संतुलन बनाने के लिए इस जोन में वापस आते हैं। यह क्यों मायने रखता है? एक बेरिश एफवीजी एक हाई प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करता है। कीमत एफवीजी में ऊपर की ओर रिट्रेस करती है, असंतुलन को कम करती है। अगर बेरिश स्ट्रक्चर बरकरार रहता है तो नीचे की ओर जारी रहती है। यह व्यवहार आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में मौलिक है, जहां एफवीजी संस्थागत नियंत्रण के क्षेत्रों को उजागर करते हैं। पेशेवर इसे कैसे ट्रेड करते हैं? एक बेरिश एफवीजी तब विश्वसनीय होता है जब यह बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ अलाइन होता है। प्रीमियम जोन इक्विलिब्रियम से ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी ग्रैब या पिछले हाई के साथ तालमेल। एग्जीक्यूशन लॉजिक, कीमत को एफवीजी में रिट्रेस करने दें। गैप के 50% लेवल के आसपास एंट्री को प्राथमिकता दें। लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट या रिजेक्शन के जरिए कंफर्म करें। अमान्यकरण एफवीजी के ऊपर एक निर्णायक क्लोज बेरिश नैरेटिव को अमान्य कर देता है। एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप रैंडम नहीं होता, यह स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन का सबूत है। जोन का सम्मान जारी रहने का संकेत देता है, विफलता स्ट्रक्चरल बदलाव का संकेत देती है। फेयर वैल्यू गैप को कैसे ट्रेड करें?
आइए एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन के बिना ज्ञान बेकार है। स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग मॉडल। मार्केट स्ट्रक्चर पहचाने, हायर हाई और हायर लो बुलिश और लोअर हाई और लोअर लो बेरिश। डिस्प्लेसमेंट का इंतजार करें, एफवीजी बनाने वाला मजबूत इंपल्सिव मूव। एफवीजी जोन को मार्क करें, सटीकता के लिए गैप के 50% लेवल का उपयोग करें। एंट्री एफवीजी में रिट्रेसमेंट पर एंट्री करें और लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर से कंफर्म करें। स्टॉप लॉस स्विंग लो से नीचे बुलिश और स्विंग हाई से ऊपर बेरिश। टारगेट लिक्विडिटी हाई या लो और पिछले स्ट्रक्चर पॉइंट्स। पेशेवर इसी तरह ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर नहीं, अंदाजा नहीं। आम गलतियां। आइए मैं आपको आम गलतियों को बताकर पैसे बचाने में मदद करूं। हर फेयर वैल्यू गैप में आंख बंद करके ट्रेड न करें। हायर टाइम फ्रेम बायस को नजरअंदाज न करें। कंफर्मेशन के बिना एंट्री न करें। लिक्विडिटी कॉन्टेक्स्ट को न भूलें। फेयर वैल्यू गैप तब सबसे अच्छा काम करता है जब यह ट्रेंड, लिक्विडिटी और समय के साथ अलाइन होता है। फेयर वैल्यू गैप अपने आप में कोई रणनीति नहीं है। यह एक टूल है, एक बहुत शक्तिशाली टूल, जब इसे मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि स्मार्ट मनी अपने पीछे क्या छोड़ जाती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली तो लाइक बटन दबाएं। प्रोफेशनल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें, क्या आप फेयर वैल्यू गैप्स में ट्रेड करते हैं या लाइव चार्ट ब्रेकडाउन चाहते हैं।